Okay, so I am Suhas Chakravarti, and I have started my career with manufacturing and manufacturing and hardware production company, and then I have switched myself to Laravel development, Laravel developing using PHP, and in that I have worked on plenty of projects, and after that I want to switch myself to the Java full stack, and in order to prepare myself as Java full stack, I have done some really cool projects on that same tech stack, and uh, total I have 2 years of experience in development, and have 3+ years of experience in production and manufacturing sector. Two things. आपने दो fancy words introduce किए introduction में. You said like I switch myself. Okay. So myself नहीं, you are switching your tech stack. First thing. दूसरा आपने एक और चीज यूज की कि आई डू प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स. ओके. ये एक आप अनिश्चित चीजों में बात कर रहे हो. प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहता है? लाइक यू डोंट नीड टू से दैट प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट. यू से लाइक आई हैव डन सम प्रोजेक्ट जस्ट लाइक ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट. आई हैव डन लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ REST APIs एंड ऑल. बिकॉज आपको बताना है. ठीक है. वो ब्रह्मा जी नहीं बैठा है इंटरव्यूअर. आपका इंप्रेशन कैसे जमेगा? राइट. कि मैंने प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट किए. मतलब वो कौन है? मतलब भगवान थोड़ी ना. उसको थोड़ी ना पता होगा आपने क्या किया. So, these mistakes. Let's move to the questions. Then after you, we will move to the voice. Okay, Mohit? तो थोड़ा सा स्थिर बैठिए. Okay, sir. Okay. Okay. So the first question. Uh, do you think RESTful services or REST APIs are stateless? So, can you please repeat the question? Do you think RESTful API or RESTful services are stateless? RESTful and REST API are. No, sir. I believe those are the stateful web services. Okay. You are saying these are stateful web services. Okay, Yes. no problem. Okay, but these are stateless. Okay. RESTful services are stateless. If you remember, we have learned this, like they are not saving any state of the user. Right? This is the core principle of RESTful services. Okay. Next, moving to the next question. No problem. Okay. Okay. There are a few changes in after before 1.7 and before 1.8, after 1.8, or you can say that after 1.7. In 1.7, we are storing our values in key value pair in hash map. I'm talking about hash map. So we are storing a value in form of hash map. But after some point of time, there is one threshold, right? So they change the data structure. I mean, they change the way of storing a key value pair. So can you tell me like what are the changes they make after 1.7 hash map data structure? No, sir. I don't have any clear idea about the changes which have made by 1.8 version itself. So, can you please guide us to learn those things? Sure. I already covered these things in Java 8, but no problem. Okay. When we are coming with Mohit, I will discuss all these questions. Right? No problem. So, Mohit, you have any answer on this question? So, sir, according to my knowledge, in 1.8 version of Java, uh, time complexity of hash map in order to search any particular key value pair has improved. How That do you is, improve it? it That has is my become. that is my interested question that I want to know. Right? You told right? They improve the time complexity. Let me tell you the what are time complexity.
Previously, when we are using a Java 1.7, we are having order of n time complexity. But in when we are using a 1.8, we are having a time complexity order of log n. So obviously they drop for time complexity because they now we are talking about log n. So Subhijit, you know that, right? You are in DSA batch. When Yes, we are talking about log n, obviously somewhere divide and conquer algorithm will be followed here, yes. right? So now tell me what type of data structure they use. I give you the hint, both of you guys. I already gave you the hint. Like उन्होंने पहले कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज किया था, अब वो कुछ और डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. सर बेसिकली जो हैश मैप है वो तो इंटरनली हैश सेट को ही इम्प्लीमेंट करता है, और उसके बाद जो भी एंट्री सेट है वो तो अ, एक, वो होता है कि एक पहले तो हैश कोड जनरेट होएगा जो भी अपना वो एंट्री Ah, होगा. so you're not getting a question. I'm not asking you internal working. Okay, just a straightforward question कि क्या डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं इन 1.8 जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हुई है. दैट इज सिंपल क्वेश्चन. आई जस्ट वांट टू नो द डेटा स्ट्रक्चर. सर इंटरनली लिंक लिस्ट को यूज़ किया गया है कि जब भी हमारा कोई भी सर्च होएगा तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम हैश कोड में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. उनका हैशिंग टेक्निक कुछ ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल. Again, I don't want to know the internal mapping, right? मैं चाहता ही नहीं हूँ आप मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ. आई नो दैट यू नो दैट, राइट? बट आई वांट टू नो क्या चेंजेस हुए हैं. बट ओके, आई नो दैट यू गाइस आर नो दैट, राइट? ओके. सो इंटरनली एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ उन्होंने बैलेंस ट्री यूज किया है. सो इन सर्चिंग इन द ट्री दैट्स दे इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम. और आप लोगों को याद हो जावा 1.8 जब मैं तुम्हें हैश में पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया भी था यस 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 कि यस सर, आई हैव लिंक लिस्ट ऑलरेडी. से लिस्ट. आई हैव. ओके. यस सर. So you guys are not revising the concept. Same goes to Mohit आपके लिए भी. ये आपको आंसर करना चाहिए था, but it's okay, no problem. हाँ सर, वो एक बी ट्री यूज करता है उसको फिर. Okay, okay, okay. यस सर. Okay, moving to the next question. Mohit, this is for you. Okay, first we will go to the Mohit, then we will go to the Subhiti. So, Mohit, what is the difference between synchronized collection and concurrent collection? Sir, can I confirm the question? Basically, you are asking the difference between synchronized collection and the concrete collection. Okay. So can I take 1 minute to think? Sure, take your time. Thank you. Sir, I think I'm ready with my answer. Mhm. So the basic difference between the synchronized collection and the concrete collection is that in case of synchronized collection, its object value can be its object can be changed, but in case of concrete collection, object cannot be changed. But whatever you are answering, Mohit, it is not like relatable to immutable and non-immutable. Yes, sir. So if I talk about the immutable object, its value cannot be changed. In case of But mutable, I'm its value can be. asking, Mohit, but I'm asking about synchronization. No problem, Mohit. It's okay. Subhijit? यस सर. So Okay, let me make the question simple. If you guys are confusing between content connection, just tell me the difference between synchronized and non-synchronized. sir, in the process of synchronization, basically one method or one request can perform in single time, and after the completion of that particular method or the request, then the next method or the request getting processed. Uh, So now and you guys are answering in this synchronization and synchronization. So let me make simple, more simpler. Okay, this question. You know the difference between vector and array list?
right? Now give me the answer. You are going right, Subhijit. Yes, in the case of vector, the process are synchronized. That means, sorry, the in the vector the process are not synchronized. So in order to not synchronize, that's have some plenty that is some Okay. particular problem Wait, and some. you're mixing all the things. Okay. In synchronization, one thread will be allowed at a time to access your Yeah, method. Like if you put a synchronization key on your method. But in non-synchronized method, or we can say if we're talking about a synchronization, then multiple thread are allowed at a time to access your resources, right? This is the total difference. So Mohit, I hope you are getting it right. You are telling the difference between immutable and mutable. Sir, can you repeat the Okay. difference between? When we talking about a synchronization, let's suppose you put a synchronization keyword on any method, right? So obviously your one thread is allowed at a time to access your resources or your object or not, right? Whenever you are putting a synchronization. But when we are talking about complete collections, just like array list and all, right? So in this case, multiple threads are allowed to access your object, right? So we can say that these are the asynchronization object or methods. Okay, sir, it is clear now. So let's move to the next question. Mohit and Subhijit. Mohit, why you turn your camera on? So, okay. Uh, Tell me one thing. Okay. This is a microservices question. Let's suppose we already learned microservice architecture. You guys know that, right? In few previous classes. We are having a lot of servers, lot of client. Okay, they are requesting to my microservices, and you guys know that we are having a load balancer in between that is balancing a load between my servers, right? We are having multiple servers, just like we have like for the Star and Zomato application, right? So we have done simulations also कि मेरा एक लोड बैलेंसर एंड वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को डिवाइड करता है मैंने तुम लोगों को लोड बैलेंसर कोड करके भी दिखाया कि वो कैसे चलता है राइट अब लोड बैलेंसर जब भी चलेगा लाइक उस पर रिक्वेस्ट आती है तो वो ट्रांसफर करता है राइट नाउ आई एम हैविंग अ 4 सर्वर्स एंड आई एम हैविंग अ 1 लोड बैलेंसर अब लेट्स सपोज एक कोई भी तुम्हारी कंपनी में बंदा है या फिर कोई हैकर है वो बार बार लोड डालता है तुम्हारे सर्वर पे राइट हो सकता है कोई बच्चा है या फिर वो बार बार क्लिक कर रहा है या कोई पोस्ट में से बार बार किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी और मल्टीपल थ्रेड से आप क्लिक कर रहे हो तो टेल मी वन थिंग अगर मेरे पास एक सर्वर है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसकी कैपेसिटी है वो सिर्फ पर सेकंड 10 रिक्वेस्ट को हिट मतलब ट्रांसफर कर सकता है ओके नाउ टेल मी वन थिंग अगर मैंने बार बार उसके स्क्रिप्ट से हिट किया तो इंस्टेंट ऑफ 10 रिक्वेस्ट आई विल हिटिंग अ 20 रिक्वेस्ट क्या होगा फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन क्या होगा देन आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित Sir, I don't know. ठीक है तो मुझे सर पहले तो लोड बैलेंसर में जब भी 10th रिक्वेस्ट मतलब कि वो होगा प्रोसेस हो चलेगा मतलब कि हो जाएगा उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तो नेक्स्ट 10 का जो है स्लॉट हम लोगों को एलोकेट होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी है वो हम लोगों को एक क्यू सर्विस या कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होगा उस पर्टिकुलर। Sujit, again, whenever I'm asking you the same question, right, do not distract yourself to answering me something else. I'm not asking you about anything Kafka and all. I'm not asking you the solution. Understand this my question. मैंने अभी आपसे सोल्यूशन पूछा ही नहीं है कि आप जो होगा उसका सोल्यूशन मुझे कैसे दोगे ओके सो बी फोकस मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या होगा अगर रिक्वेस्ट आएगी तो 10 रिक्वेस्ट उसकी कैपेसिटी है मैंने 20 रिक्वेस्ट दे दी तो क्या होगा इन दिस केस क्या होगा सर नो आइडिया सर। ऑब्वियसली लाइक अगर किसी की कैपेसिटी 10 है अगर मैं उसे 20 रिक्वेस्ट दूंगा मोहित एंड सुभिजीत तो सिस्टम डाउन होगा ऑब्वियसली सारी रिक्वेस्ट ब्लॉक्स होंगे दे आर गोइंग इनटू द क्यू राइट कि अरे अब जो जो रिक्वेस्ट आई है वो क्यू में चली जाएंगे धीमे धीमे करके वो प्रोसेस होंगे राइट बट इज इट गुड प्रैक्टिस कि मैं एक मेरी रिसोर्सेज को किसी भी एक रिसोर्सेज को इतना मैं हैवी डाल दे रहा हूँ है ना कि वो उस सर्विसेज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है तो अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ओके
आई एम आस्किंग अ जेनेरिक प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर। ओके, तो अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे सर्वर के पास बार बार अननेसेसरी लोड आ रहा है। अच्छा, डू वन थिंग, कभी भी इंस्टाग्राम पे बार बार कमेंट करके देख। डू वन थिंग, एक एक स्क्रिप्ट लिखना कोई भी लिनक्स की या पाइथन की, एंड इंस्टाग्राम पे बार बार हिट करके देख, इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, बार बार हिट करना, बार बार हिट करना। ओके, कमेंट का रिप्लाई करना, कुछ भी करना, फॉलो करना। इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू फॉर 12 आवर और आई थिंक 6 आवर। वाई? एंड दे विल शो यू वन मैसेज। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐसा मैसेज वो लोग ब्लॉक करते हैं तुम्हें। ओके, तो मैं यहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ ऐसा मैसेज तुम लोग ऑनलाइन है। ओके, ट्राई अगेन। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये सेव किया उन्होंने अपने रिसोर्सेज। अगर वो तुम्हें ऐसा करने के लिए अलाउ कर देंगे तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की सर्विस को तुम इम्पैक्ट कर रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी तुम एक ही आईपी से बार बार हिट कर रहे हो। तो अब तुमने जो मेरा रिसोर्स था उसको ब्लॉक कर दिया। तो जेन्युइन यूजर जो है, जो जेन्युइन यूजर है जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि आप वो मेरा जो सर्वर है वो सर्व ही नहीं कर पाएगा रिक्वेस्ट को, क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं कैसे बचाऊंगा अपने रिसोर्सेज को इस अटैक से? ठीक, अगर गिव द वन सर मिनट ठीक है, सोचो थोड़ा। सर अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिखाया था कि ट्राई आफ्टर 12 आवर और ट्राई आफ्टर 24 आवर। so one of the solution is this method: block that particular user for 12 hours or some particular time period, हम्म, so हम्म, that he will not disturb the server unnecessarily. समवेयर इट इज करेक्ट। और आप लोगों को याद हो तो हम ये पढ़ भी चुके हैं इनिशियल डेज व्हेन वी आर लर्निंग स्प्रिंग बूट एंड ऑल, कि रेट लिमिटर, कि पर्टिकुलर यूजर से बार बार रिक्वेस्ट आएगी। तुम बकेट, मैंने आपको एक एल्गोरिथम पढ़ाई थी कि उतनी ही 3 अगर रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं 3 प्रोसेस करूंगा, राइट? रेट लिमिटिंग याद हो तो बकेट एल्गोरिथम मैंने आपको पढ़ाई थी इनिशियल डेज में, कि 3 रिक्वेस्ट आएंगी, फिर मैं चेक करूंगा कि मेरी बकेट फुल तो नहीं है। अगर मेरी बकेट फुल होगी तो मैं उस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चलो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आपने कभी ओटीपी सेंड किया है? जैसे बैंक में ट्राई करना या फिर किसी किसी भी सर्विस को ट्राई कर लेना, Yes sir. है ना, Yes sir. हॉटस्टार ये वो, जब Yes आप sir. ज्यादा टाइम बाद ओटीपी सेंड कर लेते हो तो वहां पे लिखा आ जाता है यू हैव रीच मैक्सिमम ट्राइस। Maximum limit. हाँ, मैक्सिमम लिमिट उसको कहते हैं रेट लिमिटर। ओके, तो लर्न अबाउट इट मोर। ओके, और कोई सर बात ये नहीं अगर वैसे भी आप आंसर नहीं कर पाए। ये सॉल्यूशन यूपीआई एप्स पर भी है अगर। अब एवरीवेयर लाइक एवरीवन विल इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन, अदरवाइज कुछ अननेसेसरी लोग होते हैं जो बार बार हिट करेंगे, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर माई सर्वर, कि इस एक यूजर की वजह से मैं जेन्युइन यूजर्स को प्रॉब्लम दूं। ओके, सो एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर यू शुड have these all things in your mind before developing any system. Okay, I hope you are getting it. यस सर. Okay, sure. uh, hmm. Okay, let me ask you the one more scenario based question so with you. Okay, so अभी I'm not asking you the simple questions because उससे तो तुम लोग सॉल्व कर ही दोगे, है ना? बिकॉज मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम लोग ये 1 2 3 साल वाले एक्सपीरियंस को आंसर कर ही दोगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये सब मैं पूछूंगा। तो आई नो यू गाइस कैन आंसर दैट, ओके, बिकॉज आई ऑलरेडी टेकन योर वन इंटरव्यू। अब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मैं सबको चांस देता हूँ जितने भी पूरे पैनल में है, ठीक है? अगर किसी को आता हो तो रेज अ हैंड, आई विल पुल यू इन अ चैट। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है ना, जो मुझे क्या करना है कि मेरी एक सर्विस है, ठीक है, और ये करंट रिक्वायरमेंट है, किस कंपनी की भी है वो भी मैं तुम्हें ऑफलाइन बताऊंगा, ठीक है? मुझे एक सर्विस को माइग्रेट करना है। लेट्स सपोज राइट नाउ मैं एक सर्वर, ये रहा मेरा एक सर्वर, और ये डीबी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है? कुछ इशू हुआ, कुछ इशू हुआ, तो मैं अपने जो सर्वर्स हैं उनको कहीं और माइग्रेट करके लेके जा रहा हूँ नए सर्वर बनाने। जो ये सर्वर था, जो ये सर्वर ए था, इसमें ऑलरेडी कोड है, मतलब 2 3 सर्वर सर्विस का कोड है। बट अब मैं जब माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाऊंगा तो मैं ये कोड नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं इसमें से एक पार्ट का कोड लेके जाऊंगा बस, ठीक है?
तीन सर्विस चल रही है, मैं एक पार्ट का कोड लेके जाऊंगा, मतलब एक सर्विस का कोड लेके जाऊंगा। ओके ना, यहाँ तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? यस काइंड सर। ऑफ मुझे एक माइक्रो सर्विस बनानी है, जो एक पार्ट का कोड लेके हम एक माइक्रो सर्विस बना देंगे, एक सर्विस का। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि जो तीन सर्विसेज एक इकलौते डेटाबेस से कनेक्ट कर रही थी, अब जब मैंने माइग्रेट किया, तो जो मेरी माइक्रो सर्विस होगी वो अपना डेटा यहां से माइग्रेट करके मुझे एक नेक्स्ट डीबी में रखनी है। तो इसके लिए मेरा क्या सोल्यूशन बेस्ट रहेगा? इज इट रेस्टफुल सर्विसेज, कि मैं पहले अपनी पुरानी सर्विस से कम्युनिकेट करूं, ओके, देन मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करूं, और मैं वहां से डेटा लेके अपने डेटाबेस में रख दूं? इफ दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन, वन रेस्टफुल सर्विसेज। और अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, यू गाइस कैन एक्सप्लेन। कोई अगर पूरे पैनल में से इसका आंसर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। इन क्वेश्चंस को करने में मजा है सर जहां पे सर तुम्हारे रियल एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा काम में आए। सर बताओ। हमने एक सर्विस को दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर किया है, बट अभी हमने डेटा को जो पुराने वाले डेटाबेस में डेटा है उसको ट्रांसफर नहीं किया है। तो सर नेसेसरी नहीं है डेटा को दूसरे डेटाबेस में ट्रांसफर करने के लिए, व्हेन वी हैव ट्रांसफर वन सर्विस फ्रॉम वन ओल्ड सर्वर टू न्यू सर्वर। तो जो न्यू लेट्स सर्वर में सपोज सर्विस गई है। लेट्स सपोज आई एम नॉट हैविंग अ डेटाबेस एक्सेस, ओके। मुझे सिर्फ रीड एक्सेस है डेटाबेस का, मुझे रीड एक्सेस है, मतलब राइट एक्सेस है ही नहीं, मैं डेटाबेस से हाथ ही नहीं लगा सकता, वो किसी और टीम का डेटाबेस है। व्हेन यू आर वर्किंग इन रियल टाइम एनवायरनमेंट, कोई भी तुम्हें अपने डेटाबेस को छेड़ने नहीं देगा। if your services is like allowed to communicate with your databases, they will give you the read access, and that read access also a time limit, वो कुछ महीने बाद उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। they will not give you permanent access, that for sure। ओके। तो आप ये बताओ। नेसेसरी है डेटा को ट्रांसफर करना ही करना है। हाँ, दैट इज द रिक्वायरमेंट, मुझे करना ही करना है, और नीड है, मुझे मुझे बहुत जल्दी करना है। अदरवाइज मेरी जो कंपनी होगी दैट विल लॉस डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर। नाउ आंसर, आई विल गिव यू द 2 minutes, नोट, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। थिंक, जितने भी लोग पैनल में, थिंक, टेक योर टाइम। सर ये बोल सकता हूँ मैं, मेरा अप्रोच क्या रहेगा? सर इस सिनेरियो में मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जो भी डाटा हमारा डाटाबेस में इंटरनली वो कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, अगर हम उसको एक अलग से टेबल में रख के इनर जॉइन या आउटर जॉइन में एग्जिस्टिंग टेबल से कम्युनिकेट करवाएं, और एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन जिस डाटाबेस में हम लोगों को माइग्रेशन करवाना होगा, उस डाटाबेस में हम उस टेबल को रिकन्फर्म करें, क्योंकि माइक्रो लेट मी मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वेट अ मिनट। प्रीवियसली वी आर हैविंग दिस आर्किटेक्चर, ओके। मेरे पास एक मेरा डीबी है, एंड मेरी सर्विसेज चलती हैं, ये मेरा पूरा एप्लीकेशन है, राइट? एंड वी आर हैविंग थ्री सर्विस इन इट, वी आर हैविंग थ्री सर्विस इन इट, एंड ऑल थ्री सर्विसेज कम्युनिकेटिंग विद सिंगल डेटाबेस, ओके, लाइक दिस। अब नाउ मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, किसी ने बोला you have to migrate this your service this your service into other place, okay। तो मेरे पास टास्क क्या है, आई विल टॉक टू दीज सर्विसेज, बट देखो जब मैंने माइग्रेट किया तो ऑब्वियसली ये कोड भी यहाँ होगा, राइट? ये कोड भी यहाँ होगा, बिकॉज मैं कोड को माइग्रेट कर रहा हूँ लेकिन हटा नहीं सकता, ओके, सम प्रिंसिपल सेंटर, राइट? तो मैंने बोला कि अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमारा डेटाबेस होगा। तो अब देखो, मेरी सर्विस जब मैंने माइग्रेट की, ऑब्वियसली आई नीड माई डेटा। तो मेरा टास्क है कि मुझे इस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है इन सर्विसेज से और यहाँ पे वो डेटा लेके आना है। तो व्हाट इज अ परफेक्ट वे टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू माइक्रो सर्विसेज, अगर मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट इज क्लियर। परफेक्ट। कोई और आना चाहता है? रंजन, लेट मी पुल यू। रंजन, प्रमोट कर दिया, आप अपनी वीडियो ऑन कर लो, मैं प्रमोट कर दिया। कोई और आना चाहता है? स्वाति, नारायण, एनीबडी इंटरेस्टेड?
Swati, I'm promoting you. Okay. Not decline it. Okay. I promoted you. Swati, are you there? अच्छा ठीक है. This is the last class, Swati. If you're having a chance to interaction, then it will be good. Otherwise फिर हम पता नहीं, then हम कब मिलेंगे, right? इसलिए मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूँ. This is the last class. If you guys can interact with me, then it's good. Yeah, Jatin, I'm promoting you. Anjika, I promoted all of you. Okay. If you guys can want to talk, you can talk. Otherwise, no issue. Anjika, you are declined my request, right? You are declined, right? Should I remove you? Jinika, this is the last day, right? I don't want to do anything. सब लाइट चली गई. Please. कोई बात नहीं रंजन. प्रमोट कर दिया रंजन. If I'm telling you last time, Anjika, I will remove you. Kiran, Amit, anybody want to answer this? Then चलो, मैं बताता हूँ. देखो, मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले. सर हाँ हाँ. सर मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने अभी ज्वाइन करा है आपका कोर्स वैसे, लेकिन Okay. प्रीवियसली मैंने एक कंपनी को ज्वाइन करा था, तो उन्हें उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि उनका जो ट्रेडिंग का एक था, तो ASP.NET से उन्होंने डेटाबेस जावा स्प्रिंग बूट में उनको करना था शिफ्ट, तो उन्होंने That's the difference. वेब सॉकेट्स का That's the यूज करा. difference process. That is the worst solution. Yes. Now, WebSocket, we are opening a pooling and then we are transferring a data. That's I understand, but that is a costly operation. तो Okay. ओके. अब सुनो. If I'm having a requirement, right, for transferring the data from one side to another side, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दो चीजें पढ़ा. एक रेस्ट टेम्पलेट. तो अब ना मुझे एक बात बताओ. मेरे पास रिसोर्स है जो मुझे डेटा भेज रहा है. ठीक है. और कुछ सोर्स है जो डेटा रीड कर रहा है. तो ऑब्वियसली यू हिट अ रिक्वेस्ट एंड रीड करने में कम टाइम लगता है ना, और डेटा लाने में ज्यादा टाइम लगता है. मतलब आपने सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दी, दिस इज अ लाइट रिक्वेस्ट, लेकिन वो तो डीबी से जाएगा, क्वेरी रन करेगा, तब आपको ला के दे देगा. दैट इज लाइक हैवी प्रोसेस, राइट? तो इसमें टाइम लगेगा. द रिक्वेस्टर एंड द प्रोड्यूसर बोथ आर ब्लॉक्ड फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. लेट सपोज एक रिक्वेस्ट 5 मिनट ले रही है या फिर 1 मिनट ले रही है, तो दीज बोथ पर्सन शुड वेट फॉर 1 मिनट. Is it necessary to block my reader or my producer? Is it? और लेट सपोज कि प्रोड्यूसर ने डेटा दे दिया लेकिन रीडर ने अभी रीड नहीं कर पाया, फॉर एनी चांसेस, राइट? वी हैव सीन दिस इन जोमेटो एंड हॉटस्टार एप्लीकेशन. तो अब ये भी ब्लॉक्ड है, राइट? तो दिस इज अ कम्युनिकेशन, राइट? तो बोथ दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक है. इन दैट 3 वे हैंड शेकिंग होती है इन सारे कनेक्शन में. अब मैंने जो तुम्हें रिसेंट सोल्यूशन पढ़ाया था कुछ दिन पहले, काफका. अब बताओ मुझे, काफका यहाँ हेल्प करेगा या नहीं करेगा? I put a queue in between of both the services, and I asked to the service, say, okay, do one thing, put a data into the queue. That's all. And you don't need to do anything. Just put a data into the queue. I will take care about it. तो वो क्यू में डेटा डालेगा, अपना भाग जाएगा. क्यू में डेटा डालेगा, अपना भाग जाएगा. जो मेरी जो नई सर्विसेज बनाई है मैंने, ये क्या करेगी? सिंपली रीड अ डेटा फ्रॉम क्यू. जब भी डेटा आएगा रीड कर लो, जब भी डेटा आएगा रीड कर लो. यू डोंट नीड टू ब्लॉक एनीवन एल्स, राइट? तो ना तो तुम्हें प्रोड्यूसर को ब्लॉक करने की जरूरत है, ना तुम्हें यूजर को ब्लॉक करने की जरूरत है, मतलब जो रीडर है उसको ब्लॉक करने की जरूरत है. सो लाइक दिस वन कंपनी, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड
उन्होंने सिर्फ एक दिन में मूव कर दिए थे। ओके, विद द हेल्प ऑफ काफी। तो ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, इसको हल्के में मत लेना। ओके, मैनी मैनी कंपनीज आर वर्किंग ऑन इट, लाइक जोमेटो, स्विगी, सारे लोग इनको इसको यूज कर रहे हैं। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सर एक क्वेश्चन था। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सोच रहा था कुछ। अरे नहीं जतिन, आप पूछ लो। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर वो पहले से सर जो सर्विस हम सर जो ट्रांसफर कर रहे हैं सर वो पहले से सर वो उस सर्वर में पहले से सर मौजूद है, तो सर उसको फिर वो इंटरेक्ट कैसे करेगी कि वो पहचाने कैसे कि वो हमें उस वाली सर्विस से कनेक्ट करना है ना कि हमें उस वाली से कनेक्ट करना है। That is your service, right? You can make a change. हाँ सर, वो मतलब वही था। That is your service. पड़ोस ने थोड़ी ना कोड लिखा है। सर जी, जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग डाटा जो पुराना डीबी में रह गया था उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? There is a task, right? तुम उसी को तो ट्रांसफर कर रहे हो क्यू में डाल के। ओके। You can what I teach you, like I have teach you, मतलब तुमने कोई भी डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को, you can convert into the DTO. DTO you can convert it into JSON, या and JSON you can easily transfer into the queue. यस। And again, that JSON can be deserialized and transferred into the DTO. Right. Simple. जब मैं DTO को डालूंगा, इट विल बी सीरियलाइज, राइट? बट जैसी कोई सर्विस उसको निकालेगी, इट अगेन डीसीरियलाइज, एंड आई कैन टेक अ एग्जैक्ट DTO जो मैंने पिछली सर्विस में लिया था। मैं टास्क दे दी। दिस इज ऑल्सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज कहीं नहीं मिलेंगे, डोंट सर्च चैट जीपीटी पे, कहीं पे सर्च करने की कोशिश ना करो। देखो, लेट्स सपोज यू आर हैविंग 100 ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ओके, आपके पास बहुत सारी आईपीज हैं जो एक जगह से चल रही हैं दूसरी जगह से। बहुत सारी आईपीज हैं, बहुत सारी आईपी। क्योंकि तुमने देखा होगा, इफ नेटफ्लिक्स की बात करो तो नेटफ्लिक्स बहुत सारे सर्विसेज रन करता है, यानी कि माइक्रो सर्विसेज। ऐसे हम हॉटस्टार की बात करें, हम जोमेटो की बात करें। अब लेट्स सपोज देयर इज अ वन सर्वर दैट आईपी एंड्स विद 30। ठीक है, लेकिन तुमको नहीं पता, यू आर अ डेवलपर, ऑब्वियसली तुम्हारे सर्वर है, लेकिन तुमको पता होगा कोई एक अलर्ट आ रहा है तुम्हारे सर्वर पे कि एक रिक्वेस्ट फेल हो गई, किसी ने फूड ऑर्डर करने की कोशिश की और वो फेल हो गया। दिस इज अ बिग इशू कि कोई फूड ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है और वो फेल हो जाता है। ओके, यानी कि ड्रॉप हो जाता है ट्रांजेक्शन, कुछ भी हो जाता है। नाउ टेल मी वन थिंग, यू आर हैविंग अ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि तुम्हारी जो इशू है वो कौन से सर्वर पे आ रही है? I know that I'm asking a question like लॉग that is more than your experience. Okay, सर, एरर लॉग देखे कौन सर, लॉग्स देखे लॉग्स। but you are thousands of server, तो एक एक सर्वर की लॉग चेक करोगे क्या? लेट्स सपोज तुम्हारे पास 1000 सर्वर है और तुमने सुबह से लॉग चेक करना चालू किया और दोपहर तक तो मिले नहीं तुमको, फिर तुम्हें शाम तक भी नहीं मिले। इतने में तुम्हारा मैनेजर तुम्हें बाहर मिल जाए कि भाई एक काम कर, तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो टेल मी लाइक व्हाट इज अ गुड सोल्यूशन। थोड़ी थिंकिंग को ब्रॉड करो। अगेन, जब मैंने तुम्हें काफका पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? काफका यूज इन लॉगिंग, काफका यूज इन लॉगिंग, राइट? तो जब भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है, लेट सपोज मेरे 1000 सर्वर चल रहे हैं, दे ईच एंड एवरी सर्वर, ईच एंड एवरी सर्वर इज प्रोड्यूसर टू वन क्यू। ओके, जब भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगी 1000 सर्वर में, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, आई विल पुट इट दैट डेटा इनटू द क्यू। लिसन केयरफुली। एंड I have one server, I have one server that is consuming a data from queue and making a logs for me. अब वो तुम भूल जाओ कि वो लोग हम ये कैसे बनाते हैं, किबाना एंड ऑल। ओके, बस मेरे पास लॉग है। अब मेरे पास सिर्फ एक फाइल है जिसमें अब जब भी आप लॉग पुट करोगे तो ऑब्वियसली आप सर्वर आप पुट करोगे तो आप आईपी के साथ पुट कर दो।
कि मैं ये आईपी हूँ, ओके, मैं मेरा होस्ट नेम ये है, एंड मैं इस क्यू में डेटा डाल रहा हूँ। अब आपके पास एक फाइल है पूरी, मैंने आपको एक फाइल दे दी, ओके, आज की फाइल। आप पर डे एक फाइल क्रिएट करते हो लॉग्स की, ठीक है, यूआई भूल जाओ। तो कैन यू सर्च इन दैट डायरेक्टली? अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप ट्रांजेक्शन फील्ड सर्च कर सकते हो, तो तुम्हें आईपी मिल जाएगी, यस सर। और आईपी से उस सर्वर पे जाके लॉग्स देख सकते हो, किस दिन में आया था, क्या आया था। अगेन, काफका। तो दिस इज वेरी पावरफुल सिस्टम, ओके।